I am Hassanathan from MBA department. In previous lecture, we have discussed about Constitution and its branches. Today, I will try to make you understand about constitutionalism. It is the definition of constitutionalism. You can take a shot. Later on, I will explain. Okay, take a shot. Okay, first, what is the meaning or definition of constitutionalism? So, constitutionalism is a fundamental concept in government and law that focuses on the idea of having a written set of rules and principles known as a constitution, which outlines the structure, power, and limitation of a government. Its framework serves as the safeguard against the abuse of power and ensure that the rights and freedom of individuals are protected. It means इसका मतलब कि संविधानवाद सरकार और कानून में एक मौलिक अवधारणा है जो नियमों और सिद्धांतों रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के एक लिखित सेट के विचार पर केंद्रित है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है. इट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो सरकार की संरचना, शक्तियों और सीमाओं को रेखांकित करता है. यह ढांचा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा की जाए. It ensures that rights and freedoms of individuals are protected. So, at its core, constitutionalism establishes a system of checks and balances, where no single branch of government or individual can wield unlimited authority. It helps prevent tyranny and creates a stable environment for a society to thrive. It means कि इसके मूल में संवैधानिकता, जांच और संतुलन की एक प्रणाली स्थापित करती है जहां सरकार की कोई भी शाखा या व्यक्ति असीमित अधिकार का, अनलिमिटेड राइट्स का, अनलिमिटेड पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है. इससे अत्याचार को रोकने में मदद मिलती है और समाज के विकास के लिए एक स्थिर स्टेबल एनवायरनमेंट वातावरण तैयार होता है. So, for instance, let's consider the United States as an example of constitution. The US Constitution, written in 1787, outlines the distribution of powers between the federal government and individual states. It establishes three branches of government. The executive branch is the president, the legislative branch, Congress, and the judicial, it means the court. Each branch has a different power and can check the action of the others. It means इसका मतलब कि उदाहरण के लिए अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिकता को उदाहरण के रूप में देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में, तो 1787 में लिखा गया अमेरिकी संविधान 1787 में राइट किया गया है और संघीय सरकार और व्यक्तिगत राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण की रूपरेखा बताता है. ठीक, तो यह सरकार की तीन शाखाओं को, तीन ब्रांचेस को स्थापित करता है. पहला आपका कार्यपालिका लेजिस्लेटिव जो राष्ट्रपति हैं, विधायी यानी कांग्रेस और न्यायिक अदालत. प्रत्येक शाखा के पास, प्रत्येक ब्रांचेस के पास अलग अलग शक्तियां हैं और वह दूसरे कार्यों की जांच कर सकती है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो इंक्लूड्स ए बिल ऑफ राइट्स, द फर्स्ट 10 amendments which ensure individual rights like freedom of speech, religions, and the right to a fair trial. These rights are protected from government infringement, ensuring the citizens' liberties are respected. It means
संविधान में अधिकारों का विधेयक पहले 10 संशोधन भी शामिल हैं जो बोलने की स्वतंत्रता, धर्म और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार जैसे व्यक्तिगत अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। ये अधिकार सरकारी उल्लंघन से सुरक्षित हैं। ये सुनिश्चित करते हुए कि नागरिकों की जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। In this example, constitutionalism is at play in several ways. In this example, constitutionalism is at play in several ways. First is limited government. First is limited government. The Constitution sets clear limits on what the government can do. For instance, the 10th Amendment reserves power not granted to the federal government to the states, ensuring a balance between central and local authority. It means कि इसका मतलब कि इस उदाहरण में संवैधानिकता की कई तरीकों से काम करती है। संवैधानिकता कई तरीकों से काम करती है, जिसे मानते हैं। पहला है हमारा सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। सरकार क्या कर सकती है, इस पर संविधान, इस पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इस पर सीमाएं, इस पर बेहस लिमिटेशन निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर कि 10वां संशोधन 10th अमेंडमेंट सेंट्रल और लोकल, केंद्रीय और स्थानीय प्राधिकरण के बीच एक बैलेंस सुनिश्चित करता है, एक संतुलन सुनिश्चित करता है। संघीय सरकार को दी गई शक्तियों को राज्यों के लिए आरक्षित नहीं करता है। तो द नेक्स्ट सेकंड इज separation of power. The Constitution divides authority among different branches. What? The Constitution divides authority among different branches. The President can veto laws passed by Congress, but Congress can override the veto with a two-thirds majority. Meanwhile, the judicial branch can declare law unconstitutional, acting as a check on both the executive and legislative branches. Okay? Okay. The simple words, it means in the simple words in Hindi language that जो शक्तियों का पृथक्करण होता है, ठीक, तो संविधान प्राधिकार को डिफरेंट ब्रांचेस में, शाखाओं में डिवाइड करता है, बांटता है। जो प्रेसिडेंट कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को वीटो कर सकते हैं। ओके, लेकिन कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ वीटो को रद्द कर सकती है। इस बीच जो हमारी न्यायिक शाखा, कार्यकारी यानी जुडिशियल ब्रांचेस और विधायी दोनों शाखाओं पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हुए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। ये पावर, ये ताकत हमारे जुडिशियल ब्रांच के पास है कि अगर ये कोई भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई लॉ नहीं आता तो उसे लीगल यानी असंवैधानिक घोषित कर सकती है। द थर्ड पॉइंट इज चेक्स एंड बैलेंस। व्हाट इज चेक्स एंड बैलेंस? इट मीन्स द branches keep each other in check. For example, the president can appoint judges, but those appointments require Senate approval. This prevents any one branch of the gaining too much control. It means कि नियंत्रण का जो ब्रांचेस, शाखाएं एक दूसरे को कंट्रोल में रखती है, नियंत्रण करती है। एग्जाम्पल के लिए कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट न्यायाधीश जुडिशियल के को नियुक्ति करता है, नियुक्ति कर सकता है, ठीक, लेकिन उन नियुक्तियों के लिए सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, या किसी एक शाखा को बहुत अधिक नियंत्रण प्राप्त करने से रोकता है, ठीक। द फोर्थ पॉइंट इज बिल ऑफ राइट्स।
in the Bill of Rights, the Constitution protects individual rights from government influence, government interference. Uh, for example, the First Amendment guarantees allowing, allowing citizens to express their opinion without fear of censorship. इट्स मीन्स कि अधिकारों के विधान, मतलब कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्तिगत अधिकारों को सरकारी हस्तक्षेप से बचाता है। एग्जाम्पल के लिए कि पहला संशोधन भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें नागरिकों को सेंसरशिप के डर के बिना अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति यानी परमिशन मिलती है। द लास्ट पॉइंट और द लास्ट सब heading is rule of law. Constitutionalism constitutionalism upholds the principles that everyone, including government officials, must follow the law. No one is above the law. No one is above the law. Ensuring fairness and justice. It means कि संवैधानिकता के जो सिद्धांत को कायम रखती है कि सरकार अधिकारियों सहित सभी को कानून का पालन करना चाहिए, निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कानून से ऊपर नहीं। सो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट्स, आई विल definitely solve it. Okay, thank you class. Okay, the final conclusion of let me conclusion of constitutionalism. So overall, constitutionalism ensures that a company's governance is structured, fair, and accountable. It provides stability, protects citizens' rights, and prevents abuses of power. While the specific content and structure of constitutions may vary across different countries, the underlying principle of establishing a framework of rules and limitations remains constant of modern democratic societies. It means कि कुल मिलाकर संवैधानिकता यह सुनिश्चित करती है कि देश का शासन संचालित निष्पक्ष और जवाबदेह या स्थिरता प्रदान करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, नागरिकों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। हालांकि संविधान की विशिष्ट सामग्री और संरचना अलग अलग कंट्री में डिफरेंट हो सकती है। रूल्स और सीमा और लिमिटेशन की रूपरेखा स्थापित करने का अंतर्निहित प्रिंसिपल सिद्धांत आधुनिकता लोकतांत्रिक समाजों के आधुनिकता पर बना। सो ओवरऑल इट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट्स, I will definitely solve it. Okay, thank you students. The next lecture maybe it is the Constitution of India and history of Constitution.